are now unmuted. Hello Ariman, how are you? Can you listen me? Ariman, are you able to listen my voice? Good evening, sir. Yeah, I'm good evening. How are you? Good, sir. Okay, that's सब fine. आवाज आ रही है. Okay, fine. Okay, that's good. Okay, so last class हमने क्या डिस्कस किया था, like the way to find the like time period of spring block system, and उसके बाद हमने डिस्कस किया था combination of springs, right? So उसमें हमने क्या पढ़ा था इन combination of springs में? First सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर इफ देयर आर टू स्प्रिंग्स एंड वन ब्लॉक सिस्टम, देन के इक्विवेलेंट विल बी बेसिकली like this, k1 by k equivalent is equal to 1 by k1 upon 1 by k2, एंड कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में like this is k1 and this is k2, राइट? सो ये हमारा हो गया लाइक
सीरीज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, राइट। और लाइक दिस कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लाइक दिस, राइट। ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन, लेटर दिस इज k1 एंड दिस इज k2, राइट। सो इसमें एक आई थिंक एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसमें, अगर आपको लाइक एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी लाइक इन दिस पार्ट, combination of string. No, sir. Okay, that's fine. Okay, so let just try a question आप try करो. Okay, let me write the question first, then we'll study Angular SSM. There is a spring block system like this: one spring, two spring, and three spring, right? In this way, attached with a block like this, and there is another spring, right, in this way, and the spring constant are like this is k, this is k, this is k, and the spring constant of this is, sorry, this is, wait, spring constant of this is 2 by 3k, right, and the mass of the block is m. So you need to find the time period for a small oscillation of block m. Find time period for a small oscillation of block m, right. Let's try this one. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. Okay. Basically, you need to find the k equivalent, right? Because हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने कैसे किया था, डायरेक्टली जस्ट टू फाइंड द k equivalent हमने निकाल लिया था. आफ्टर कैलकुलेटिंग k equivalent, just write time period is nothing but 2 pi root of m by k equivalent. ठीक है, so basically आपको k equivalent फाइंड करना है. Good evening, sir. Yeah, good evening. Okay, Sanskriti. Just read this question. Actually, there is a spring block system, right? There are 4 spring, 3 springs having spring constant k, and one is 2 by 3k, and you need to find the time period for a small oscillation of block m. Just try this one. Sir, answer आया 2 pi into root m by k. Right. Basically हमें जब भी आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मिले तो सिंपली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई रूट ऑफ m by k, राइट. सो बेसिकली फॉर इफ देयर इज ओनली वन ब्लॉक, राइट, अगर केवल एक मास हो तब भी, अगर एक दो और हो तो फिर ठीक है. इन दैट केस हमें जो बेसिक प्रोसेस है, डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द
मेन पोजीशन, उसके बाद स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करके, फिर उसके बाद नेट फोर्स इक्वेशंस लिख के, फिर उसके बाद एसएसएम इक्वेशन में कन्वर्ट करके, देन फिर ओमेगा स्क्वायर फाइंड करके हम कर सकते हैं पोजीशन। बट अगर एक ब्लॉक को केवल एक मास हो तो इजीली हम डायरेक्टली ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो के इक्विवेलेंट मींस व्हाट, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 2 3 and 4 spring number 1 2 and 3 are in series, right? So in series में हम कैसे निकाल सकते हैं 1 by k equivalent, like हम 1 2 3 springs की बात कर रहे हैं। So 1 by k equivalent is equal to 1 by k plus 1 by k plus 1 by k, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 3 by k, और हम बोल सकते हैं k equivalent is nothing but k by 3, right? And these three springs are in parallel combination with the another one, like spring number 4. So parallel combination में मतलब means finally let us suppose इसको k equivalent dash बोल देते हैं। So k equivalent जो हमारा actual है for whole system क्या आ जाएगा, nothing but k1 plus k2, that is sorry 2 by 3k plus k by 3, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। So टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, what will be टाइम पीरियड is nothing but 2 by root of m by k, right? So basically इस क्वेश्चन में क्या था, यू नीड टू फाइंड द k इक्विवेलेंट, राइट? अगर आपको k इक्विवेलेंट मिल गया देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, राइट? संस्कृति, डिड यू गेट इट? Yeah, sir. Okay, okay, that's fine. Okay, so let us move forward. Okay, just write now we'll study learn angular system, right? Angular system. Today we'll try to finish this chapter, right? कोशिश हम करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने का, बिकॉज बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं इसमें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट? एंगुलर सिस्टम क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा था, what we have learned till now, that was the linear system, means like if the particle is lying on like horizontal, any horizontal or vertical, basically in one direction, right? I can say in a straight line basically, like अगर ऐसा कोई ब्लॉक है, ये है हमारा मेन पोजीशन और ये हमारा फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ए यानी प्लस ए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर सिस्टम, राइट? ये हमारा लीनियर सिस्टम का एग्जांपल था, ठीक है? लीनियर सिस्टम। सो एंगुलर सिस्टम मींस व्हाट, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन एंगल लाइक दिस। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, लेट अस सपोज there is a particle, or I can say bob of mass m which is attached with a string of length l, एक स्ट्रिंग से अटैच जिसका लेंथ l है। अगर मैं क्या करूं, इसको स्लाइटली, अगर ये वर्टिकल पोजीशन होगा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ये जो पोजीशन इसका एक, ये कौन सा पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, राइट? अगर मैं क्या करूं, इसको स्लाइटली थीटा एंगल ऊपर लिफ्ट करके मैं इसको रिलीज कर दूं, छोड़ दूं यहाँ से, इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशन है, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, एंड इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉब पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, लाइक दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीलेट करता रहेगा। इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, व्हाट विल गेट, यू विल गेट दैट लाइक एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर रिलीजिंग दिस पार्टिकल, इस सिचुएशन में वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, जीरो होगी, राइट? एंड जैसे जैसे नीचे आएगा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड अगेन इस पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। सो क्या ये आपका हो गया मीन पोजीशन, एंड दिस पॉइंट इज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट, right? So like such kind of rotation, such kind of system is called as angular system, right? So in similar way of, जैसे कि in linear system what we learned that हमें एक रिलेशन चाहिए था, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट? ये हमें क्या जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर सिस्टम वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि क्या f इक्वल टू माइनस के एक्स इज द रिलेशन और जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर सिस्टम, राइट? बट इन हियर यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स हम बोल सकते हैं इसको, या फिर एक और टर्म इसको यूज किया जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, राइट? रीस्टोरिंग
फोर्स, बेसिकली नेट फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो। कैसे कि अगर किसी पार्टिकल को स्लाइटली, जैसे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हम पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते थे, मीन पोजीशन, फिर उस पोजीशन हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते किसी डायरेक्शन, आइदर लेफ्ट राइट किसी भी। तो लाइक इफ यू आर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाय स्मॉल अमाउंट x, so in that situation the force exerted, net force exerted is called the restoring force। वो बेसिकली क्या रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पे एंगुलर सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, राइट, विच विल रोटेट द पार्टिकल, जो उस पार्टिकल को रोटेट कराएगा एंगुलर मोशन में, राइट। या बोल सकते हैं पार्शियल सर्कुलर मोशन भी हम बोल सकते हैं, एंगुलर मोशन भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट, रिस्टोरिंग टॉर्क। और यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, लाइक एंगुलर हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो सो रिस्टोरिंग टॉर्क दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस टाइम के, लाइक x क्या है यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, हियर थीटा, व्हाट इज So थीटा, theta या हाँ अरमान बोलो। is angular displacement. हाँ एग्जैक्टली, लाइक थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। ये भी चीज ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे इन सिमिलर वे, जैसे हमने इसमें पढ़ा था x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, वैसे ही ये क्या है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। व्हाट इज के इज नथिंग बट द एसएचएम कांस्टेंट, राइट। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली हमने किया, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली स्प्रिंग के केस में या उसके पहले जो हमने चीजें करी थी। तो यहाँ पे क्या है, ये एसएचएम कांस्टेंट है, लाइक, ठीक है। तो अगर एंगुलर एसएचएम की बात होगी तो कुछ इस फॉर्म में हमें उस इक्वेशन को, लाइक उस रिस्टोरिंग टॉर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड व्हाट वी कैन राइट, टॉर्क टाउ, टाउ इज नथिंग बट इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने, लाइक रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। Yes. Okay, 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 that's fine. Okay, that's very good. Okay, so basically हम क्या लेते हैं, tau is equal to I alpha, right? Like what is I? I is moment of inertia about axis of rotation. ये चीज भी ध्यान रखना. Like and alpha is obviously angular acceleration, right? So इसको हम क्या लिख सकते हैं? Tau के प्लेस पे, टॉर्क के प्लेस पे I alpha is equal to minus k into theta. And इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करेंगे. Like हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू, राइट। सो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आई को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, राइट साइड। सो व्हाट आई कैन राइट अल्फा लाइक दिस, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के बाई आई थीटा, राइट। अब इसको अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा ये सिमिलर है एज लीनियर एस, जैसे लीनियर सिस्टम में हमने पढ़ा था d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू x, वैसे यहाँ पर है d2 थीटा अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस k बाई i इंटू थीटा। या फिर अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस k बाई i थीटा इज इक्वल टू 0, right? So this is the I can say like differential form of angular system, right? So ये जो डिस्प्लेसमेंट का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का ये जो कोफिशिएंट k बाई है, ये k बाई i किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा। And what is omega? Omega is angular frequency, not angular velocity, right? Don't confuse with that, right? This is angular frequency, right? जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली लीनियर सिस्टम में। सो लाइक ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई आई, एंड दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ आई बाई के, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन टाइम पीरियड का, ठीक है, इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, राइट। समझ में आया आपको ये, हाउ कैन वी कैलकुलेट टाइम पीरियड इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम? यस संस्कृति। सर वो पहले भी ओमेगा स्क्वायर ही होता था ना, हाँ एग्जैक्टली, पहले भी k बाय हाँ एग्जैक्टली, तो वहाँ पे k बाई m का रिलेशन कुछ आता था इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम, बट हियर इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम ये क्या है, k बाई i। व्हाट इज i? ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। i इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट।
if the axis of rotation is center one, then it will be equal, right? But we'll always take I about axis of rotation. जिस axis के about rotate कर रहा होगा उसके about हम I लेंगे, ठीक है? इसको लिख लेना, moment of inertia about axis of rotation, right? Right? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो जो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में आपने बोला था नेट फोर्स होता है ना सर, इसको नेट, रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, फिर से बताना। तो ऐसा हम एक सिंपल केस लेते हैं, देखो नेट फोर्स व्हेन वी डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, हमने ऐसा सिचुएशन लिया था। चलो एक केस देखो मैं बताता हूँ, राइट? लेट अस सपोज दिस इज mean position, right? Mean position means what? There is no extra, like net force acting on this block is zero, right? Mean position मतलब ये है। And let us suppose I displace this particle by a small amount x, मैंने इसको small amount x से इसको क्या किया, displace कर दिया, ठीक है, right? So let us suppose न्यू जो पोजीशन ये आ गई, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, कुछ x इलोंगेशन आ गया। सो इस सिचुएशन में नेट फोर्स जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अब ठीक एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ा। अगर एक्सटर्नल फोर्स है ठीक है, लेकिन तो मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो लाइक व्हेन आई डिस्प्लेस दिस पार्टिकल बाय अमाउंट x, सो नेट फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स I am writing the net force only, sorry the net resultant force which is acting on this block, ये कितना आ जाएगा, kx in left out direction, right? तो इसी f net को, नेट फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट द वो फोर्स जो हम मीन पोजीशन से ब्लॉक को या पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये फोर्स लाइक अगर इन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो फोर्स kx लग रहा है, इट लाइक दिस फोर्स ट्राइज टू बैक दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को ये अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, राइट? सो दैट लाइक दिस ब्लॉक कम्स एट दिस इट्स मीन पोजीशन, क्या कहाँ पे आ जाए, अपने मीन पोजीशन पे आ जाए, ठीक आ तो जाता है, बट यहाँ से यहाँ आने में इसके पास कुछ वेलोसिटी गेन हो चुकी होती है, तो ये फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से इधर आता है। इसलिए इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, बिकॉज इट्स ट्राइज टू try to keep this block or particle in its original position, initial original position में जिसमें वो था उस पोजीशन को रखने की कोशिश करता है। That's why you call it restoring force। कुछ नया नहीं है, राइट? वही बेसिकली वो सिचुएशन जब हम एक स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं। क्लियर है यार में? यस सर। Okay. Anything anyone wants to ask in this, like in this angular SHM, like how to calculate time period of a particle in case of angular SHM? Sanskriti, did you get it? Yes, sir. Okay, that's fine. ठीक है. So basically, what we have to do, first of all, we need to find the restoring torque after displacing, like in similar way जैसा हमने steps लिखा था फाइंड करने के लिए लीनियर रिलेशन में, वैसे हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, देन उससे हमें उसको थीटा डिस्प्लेस करना पार्टिकल को, देन वी हैव टू राइट द रिस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं या फिर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एंड उसको हमें माइनस के थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड रिप्लेस टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड वहां से हमें जो रिलेशन मिलेगा अल्फा इसको, या फिर इसको बेटर की, एक मिनट, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ना लेके आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई आई थीटा, राइट? सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू ओमेगा ई स्क्वायर, राइट? सो ओमेगा ई स्क्वायर हमें पता चल गया, देन वी कैन राइट द टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा, राइट? ओके फाइन, okay, just try this one, simple, the most easiest one. Let us suppose there is a spring and block system, block or bob, anything you can use, right, which mass is m and length of spring is l,
right? So what will be the time period for small oscillation of this bob? Small oscillation means like when I displace this bob by an small amount of angle like this, okay? Theta is very small, right? Theta is very small, right? So just try to find out the time period of this bob. सॉल्व हो गया ये? एनीवन गॉट द आंसर? देखो एनीवन गॉट द आंसर? कोई किसी का आंसर आया? नो सर। ओके चलो कोई बात। सी देखो आप इसको फर्स्ट देख लो, देन फिर आप नेक्स्ट ट्राई करो, राइट? सो हमने क्या किया, इस पार्टिकल को, इस बॉब को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया बाय एन स्मॉल एंगल थीटा, राइट? ओके, सो इस सिचुएशन में अगर हम इसका एमबीडी ड्रॉ करें, फोर्सेस अगर हम लिखें, सो क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं? ये एंगल थीटा हो गया, एंड एक मिनट लाइक दिस, ये चीजें हो गई, एंड दिस इज द टेंजेंट। सो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल क्या आ जाएगा? ये भी थीटा आ जाएगा, ठीक है? सो अगर हम mg को रिजॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस डायरेक्शन मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे mg cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा? mg sin थीटा। ये दो चीजें हमें मिल जाएगी। हम इस तरह फोर्स को भी रिजॉल्व करके कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पार्टिकल या ये बॉब है, ये जो हिंज पॉइंट है स्ट्रिंग का, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है या रोटेट करेगा, या फिर बोल सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा होगा? एसोचम कर रहा होगा, ठीक है? ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो हम टॉर्क लिखा लेंगे, तो बेसिकली यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि जो वर्टिकल पोजीशन है, लाइक दिस वर्टिकल पोजीशन इज द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हमने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया बाय अमाउंट थीटा। सो अब हमें क्या निकालना है? इस पोजीशन पे हमें टॉर्क निकालना है। वी नीड टू फाइंड टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है, राइट? तो इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर इसका एपीडी अगर आप बनाओगे तो एक mg फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, एंड एक टेंशन फोर्स लग रहा है इन दिस वे, दैट इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ठीक है, राइट? सो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट, ये जो हिंज पॉइंट है या फिर जो टॉर्क हमें निकालना होता है, हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? अबाउट द पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा उसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना होगा। तो यहाँ पे हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो हम किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे? इस हिंज पॉइंट के अबाउट। सो कौन कौन से फोर्सेस हैं? टेंशन फोर्स है, mg फोर्स, राइट? अब ये बताओ आप लोग, टेंशन फोर्स का टॉर्क कितना होगा अबाउट दिस पॉइंट? व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ टेंशन? 0, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज टेंशन फोर्स इसी पॉइंट से ही पास करेगा, राइट? तो फोर्स है, बट जो r है, r जो टॉर्क हमारा फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। r क्या है? 0 है। तो टेंशन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो टॉर्क ऑफ टेंशन क्या आ गया?
ये 0 आ गया, हमें किसका टॉर्क मिलेगा, टॉर्क ऑफ mg का टॉर्क मिलेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब बताओ mg का टॉर्क क्या होगा, व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ mg, सर एल एम जी साइन थीटा। राइट राइट। सो mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड r क्रॉस f मींस लाइक दिस इज r इज l एंड द एंगल बिटवीन r एंड f इज थीटा, राइट। तो हम क्या, और एक चीज और, इफ यू आर टेकिंग आउटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन लाइक इन दिस सिचुएशन mg का टॉर्क किधर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड, जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको मैं क्या लिखता हूँ, माइनस के साथ मैं लिख सकता हूँ माइनस mg इंटू एल साइन थीटा, राइट। ये हमारा होगा टॉर्क ऑफ mg एट दिस सिचुएशन अबाउट दिस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस है या पॉइंट है इसके रोटेशन के वक्त हमें मिल गया, राइट। अब टॉर्क को हमें क्या लिखना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। सो आई ऑफ दिस मास, लाइक बेसिकली ये एक पॉइंट मास हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई इसका सिग्निफिकेंट साइज नहीं है, ठीक है। सो इसका आई कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, what will be moment of inertia of this bob about axis of rotation, सर एम एल स्क्वायर। right, simply, right, because this is point mass, so point mass का simply क्या हो जाएगा, ml square into alpha is equal to minus mgl sin theta, right। so m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस g by l sin theta, राइट। अगेन अब एक चीज हम यहाँ पे एक assumption क्या माना था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट। सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, then we can write sin theta is nearly equal to theta, not exactly but we can write in this way, right, for small displacement, right, हम small for very small theta की वैल्यू बहुत छोटी है, then we can write in this way, right। so इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस g by l theta, अल्फा इज इक्वल टू माइनस g by l theta, राइट। सो इसको अगर आप कंपेयर कर लो जो हमने ऊपर अभी डेरिवेशन किया, ठीक है, ये जो फॉर्म हमारा था, ठीक है, ये जो फॉर्म था कहीं कहीं हमारा इसी फॉर्म में आ गया है, ये जो वैल्यू है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग टर्म इनटू थीटा, एक्चुअली आई की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, आई की वैल्यू अगर मैंने पहले नहीं लिखता तो ठीक है, यहाँ पे आता वो कैंसिल आउट हो जाता, चीज सेम आती है। तो बेसिकली जो इस फॉर्म में लाने के बाद, लाइक अगर हमें इस फ्री फॉर्म मिल गया तो देन इन दिस सिचुएशन द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। so in this situation what will be omega square will be equal to g by l, right। so omega will be equal to square root of g by l, so what will be time period will be nothing but 2 pi root l by g, right। so time period of oscillation for a bob, और इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 pi root l by g, राइट। ये चीज आपको ये आंसर देख के समझ में आ रहा होगा, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, ये क्या है, ये मास के टोटली इंडिपेंडेंट है, सॉरी मास इंडिपेंडेंट, राइट। ये जो बॉब का मास क्या है उस चीज पे डिपेंड नहीं करता, टोटली इंडिपेंडेंट है, समझ में आया ये, यस। ओके दैट्स फाइन। संस्कृति डिड यू गेट इट, Yes, sir. ओके। लाइक अगर मैं लाइक कंबाइन हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो कोई इशू तो नहीं ना, should I speak to only in English, Yeah, sir. No problem. okay that's fine, okay। so this is the simple case of angular system, right। अब like different situations हो सकती हैं, different object हो सकता है, right, the process is same, right। first we need to find the like equilibrium position or mean position, then like we have to displace by small amount, right, in angular displacement in angular way by small amount theta, then we need to find the torque at that situation, then after that we have to convert in the form of alpha is equal to minus something constant into theta, then like the coefficient of theta will be equal to omega square, then what will be the value of time period will be 2 pi root l by g, ये बेसिक प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
सो ऐसे और कोई भी अगर आप इन केस ऑफ बॉब की जगह कोई और ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दिया, ठीक है, लेट अस सपोज डिस्क हो गया एंड स्फेयर, ठीक है, लाइक अगर एक सिग्निफिकेंट साइज है उसकी तो फिर हमें उसका ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी द प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, प्रोसेस सेम है, राइट। So should I take some more example or you got it? कुछ और एग्जाम्पल मुझे लेना चाहिए या फिर समझ में आ गया आपको ये? ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, बिकॉज आज हम ट्राई करते हैं कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। ट्राई क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, राइट। अगर कोई क्वेरी डाउट्स आते हैं देन जस्ट आस्क टू मी, राइट। नेक्स्ट इज द फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम जो हमने किया वो बेसिकली एक बॉब सिंपल पेंडुलम है, उसको हम बोलते हैं, राइट। एक बॉब इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, दैट उसको हम सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं। Physical pendulum is what, like if there is an object which has a significant size and if we fix that object with hinge or other any support, then if you displace that object slightly by an amount of theta, then what will be the time period for a small oscillation, right? Something like this, इस तरीके से physical pendulum. Let us suppose there is an object like this, ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं जनरल ले रहा हूँ and let us suppose हमने इस पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया, दिस इज हिंज पॉइंट, राइट, दिस इज हिंज पॉइंट, हमने यहाँ पे इसको हिंज कर दिया एंड इनिशियली दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। इनिशियली इक्विलिब्रियम में था बट आई डिस्प्लेस दिस पार्टिकल बाय एन स्मॉल अमाउंट, हमने इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया बाय एन अमाउंट थीटा, ठीक है, लाइक दिस इज वर्टिकल लाइन and let us suppose like this, on this line there is a center of mass कौन सा पॉइंट है, let us suppose ये पॉइंट है center of mass, right, this is center of mass, so mg will act in this way downward, right। ये वो पोजीशन है जब हमने इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली थीटा डिस्प्लेस कर दिया, उस टाइम में इसकी सिचुएशन है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि जो लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे था, कुछ यहाँ पे रहा होगा ये, राइट, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या हिंज पॉइंट से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस d, ठीक है, राइट। सो राइट, ठीक है, हमने क्या किया, थीटा डिस्प्लेस कर दिया, सो जस्ट राइट द प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस सेम है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू mg का टॉर्क ओनली आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एंड इट विल बी इनवर्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, माइनस mg, राइट, एंड व्हाट इज r is nothing but d and angle between mg and r is theta, so I can write mg d sin theta, right, and theta is small, so I can write it as minus mg d theta, right, since theta is very small, sorry, since theta is very small, so I can write sin theta is nearly equal to theta, right। So और इसको टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। सो व्हाट विल बी अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस एम जी डी बाई आई इंटू थीटा, राइट। सो अगेन ये आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट, बिकॉज द हिंज पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस की ओर क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे और ऐसे ही रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। सो आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने आई कैलकुलेट किया, ठीक है। सो लाइक ये हमें क्या मिल गया, इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मेट में हमें मिल गया। सो दिस होल टर्म will be equal to omega square. So how we can write omega square is equal to mg d by I, ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो आई कैन राइट ओमेगा is equal to square root of mg d
by I, or I can also write time period is nothing but 2 pi square root of I by mgt, right? So like in case of a significant sizable object, अगर कोई significant sizable object है तो उस सिचुएशन में ये प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का, राइट? लाइक एंगुलर सिस्टम का एक बोल सकते हो, देयर इज एन अनदर केस, एक दूसरा केस है बेसिकली। देयर इज नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, प्रोसेस इज द सेम। वी हैव टू फाइंड द नेट टॉर्क फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिस्प्लेसिंग एन स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा। हमें नेट टॉर्क निकालना है, देन उसके बाद हमें अल्फा के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। वंस वी गेट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, so जो constant term होगा या coefficient term जो theta होगा, that will be equal to omega square, then from there we can find the value of time period, right? and हाँ एक चीज और, अब जैसे कि हमें क्या जो I क्या है, I is about axis of rotation, इस चीज को मैं लिख देता हूँ, I is about moment of inertia about axis of rotation, right? axis of रोटेशन, तो सेंटर ऑफ मास इसका तो यहाँ पर है, तो आई क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू, आपको पता md square, राइट राइट, IC1 मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इनटू d स्क्वायर। md स्क्वायर नहीं होगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? दिस इज ए साइजेबल ऑब्जेक्ट, एक सिग्निफिकेंट साइज है इस ऑब्जेक्ट का, तो हम सीधे md स्क्वायर नहीं लिख सकते ना। लाइक लेकिन आपने पढ़ा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? रोटेशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? ICM प्लस m इनटू, एक्सक्यूज मी सर, या टेल मी। सर एक बार टाइम पीरियड से रिपीट करना, मेरा कनेक्शन एक्चुअली चला गया था। Okay, okay, like you got this one, like how I calculate this time period 2 pi is into root या of, या सर, like nothing is like I just explained that, like what is I? I is the moment of inertia about axis of rotation, right? Because this object is a sizable object and is having a significant size, right? So like you might have learned in the chapter rotation that I is about any axis of any solid object is equal to I assume is moment of inertia about center of mass plus mass into distance square, right? बस ये चीज मैंने एक्सप्लेन की, नथिंग एल्स। क्लियर है ये? यस सर, ओके, आई इज सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर ना। राइट, या ओके, आई होप यू माइट हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन रोटेशन, रोटेशन में आपने पढ़ा होगा शायद इसको। यस सर, दिस इज कॉल्ड यस पैरेलल सर। एक्सिस थ्योरम, राइट? ओके, कोई नहीं, लाइक हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी आएगी हाउ टू solve such kind of questions, right? Okay, let me give you a question, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, देन आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, सॉरी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आएगी, right? Okay, let us suppose there is a disk of mass m and radius r like this, right? ऐसे क्या है, एक डिस्क है, there is a disk having mass m and radius r, right? And let us suppose this is its center and the disk is hinged at this point, this is hinge point, let me draw with another color, ये क्या है, इसका हिंज पॉइंट है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया, राइट? इस पॉइंट पे इसको जस्ट अबव दिस सेंटर, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया, दिस इज हिंज पॉइंट, ठीक है? डिस्क है, मास एंड रेडियस आर, so what you have to like just find time period for small oscillation, राइट? लेट अस सपोज अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, राइट, इस तरीके से, एंड दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट? थीटा इज क्या है, वेरी स्मॉल है, सो फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, राइट? एक कुछ सिमिलर केस है, कुछ अलग नहीं है, जैसा अभी हमने एक फिजिकल, बेसिकली दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल पेंडुलम का एग्जांपल है, कोई डिफरेंट केस नहीं है, सिमिलर एज एंगुलर एसिस्टम के सिमिलर ही है, ठीक है? तो बहुत कुछ नया नहीं है, बस इसको एक न्यू टर्म नाम दे दिया गया, क्या, फिजिकल पेंडुलम, बहुत कुछ नया नहीं है इसमें, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। आप डायरेक्टली फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइक जो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखा था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाई mgt,
सो ये कैसे हमने लिखा था, I is the moment of inertia of the object about axis of rotation. What is D? D is the distance between the center of mass and the hinge point. D क्या है? सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। Anyone got the answer? ओके सी, किसी का आंसर नहीं है? सर आ गया ओके फाइन, क्या सर, आंसर? 2 पाई √3r/2g। √3r/2g। ओके ओके, चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बेसिकली क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर है, जब हमने थीटा डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे आ गया। हमें कंप्लीट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हम इस टर्म को समझ लेते हैं। व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये वाला पॉइंट है। So, इसके अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, राइट। बेसिकली ये जो एक्सिस क्या है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट ये जो एक्सिस इसके सेंटर से पास करेगी और जिसके परपेंडिकुलर होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, ठीक है, प्लस m इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस? नथिंग बट r स्क्वायर। सो i कितना आ जाएगा हमारा? 3/2 mr स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो i अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें मिल गया। व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू r है, तो जस्ट पुट दिस वैल्यू, यू विल गेट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I is what? 3/2 m r square by m into g into d is what? r. So m will get cancel out, 1 r will get cancel out, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 pi square root of 3/2 r by g। ये आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। क्लियर है? संस्कृति, डिड यू गेट इट? समझ में आया ये? हाँ जी सर। ओके दैट्स फाइन, ओके दैट्स गुड, चलो बढ़िया। ओके सो आई गिव मोर एग्जांपल। नो चलो कोई नहीं, एक्चुअली आज फिनिश कर लेते हैं, देन लाइक आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते रहना, राइट। ओके नेक्स्ट, आई थिंक शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, मे बी लाइक जेईएमएस में कभी कभी पूछ लेता है। टॉर्सियोनल पेंडुलम, like this torsional pendulum, मे बी शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले, कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से मैं फिगर बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा, लाइक दिस, ऐसे। ये है क्या बेसिकली, जैसे लेट अस सपोज, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेट अस सपोज आपने एक स्ट्रिंग लिया ऐसे लंबा सा,
एंड स्ट्रिंग में, एक मिनट, ऐसे लंबा सा आपने स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में नीचे कोई भी एक पार्टिकल बॉल कोई भी आपने बांध दिया। आपने क्या कि इस बॉल को, मतलब बॉल का पोजीशन वही है, आपने इस बॉल को ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया इन दिस वे, राइट। सो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में एक रैप सा बनने लगेगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे रैप सी होने लगेगी। एंड जस्ट जब आप उसको रिलीज करोगे, ये क्या होगा, ये जो बॉल अपने उसी पोजीशन पे इसके ऊपर क्या करने का, इन दिस वे रोटेट करने लगेगा, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ पेंडुलम, या पेंडुलम बेसिकली एक छोटा सा बॉब या ऑब्जेक्ट है, ये जो नीचे बना हुआ है, राइट, ये जो नीचे एक छोटा सा बॉब मान सकते हैं, या स्मॉल कोई ऑब्जेक्ट ऐसा सिंपल सा मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने एक्सिस के अबाउट इसी तरीके से ऐसा मैं बनाऊं, ऐसा कुछ ओमेगा से रोटेट करने लगता है, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ सिचुएशन और सच काइंड ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड टॉर्सियनल पेंडुलम, राइट। और जितना एंगल हम इसको घुमाते हैं, एंगल मींस व्हाट, इन दिस वे, राइट। अगर मैंने सपोज यहाँ बॉटम पे ऐसे मैंने इसको एक ऐसे ऐसे रोटेट किया, ठीक, इन दिस वे, तो जितना हमने रोटेट किया उस रोटेशन को या उस एंगल को क्या हम बोलते हैं, लेट सपोज मैंने इसे एक केस है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या किया, इसको रोटेट किया, तो ये जो लेट सपोज अगर मैंने थीटा एंगल रोटेट किया, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितना हमने रोटेट किया। बेसिकली इसमें हम स्ट्रिंग नहीं, जनरली एक स्मॉल या थिन वायर का यूज होता है, ठीक है, ये थिन वायर का यूज होता है, राइट। और इस एंगल को, जितना एंगल हम ऐसे इस पार्टिकल को इस सेंस में, मतलब हमें जितना भी रोटेट किया उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। और एंगल बहुत छोटा, लेकिन हम जो भी कंडीशंस सभी ले रहे हैं वो सारी आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन मींस देयर इज नो एनी एक्सटर्नल हिंड्रेंस, नो एनी एयर रेजिस्टेंस, नो एनी रेस्टिव फोर्स, कोई रेस्टिव फोर्स हिंड्रेंस नहीं है, उस सिचुएशन की हम बात करें तो। लेकिन जब हम स्लाइटली रोटेट करके ट्विस्ट करके उसको रिलीज करेंगे, हाँ बोलो। तो सर ये थीटा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है, जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसको, वो है। एग्जैक्टली हाँ, जो हम ट्विस्ट करेंगे, लेट अस सपोज मैंने क्या कि बॉटम से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड किया और स्लाइटली ऐसे मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो वो जो रोटेशन है, जितना एंगल वो रोटेट होगा, या जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। ओके, बेसिकली आपको उतना, ठीक है, आप इसको समझ होता किस तरीके से। तो इस सिचुएशन में जो रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर नेट टॉर्क बोल सकते हो, नेट टॉर्क जो निकालते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अगेन ये हिंज पॉइंट है, राइट, ये वाला पॉइंट हो गया, नेट टॉर्क बोल सकते हो, या फिर अगेन रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। वो क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस टाइम सी इंटू थीटा, राइट। टाउ इज इक्वल टू माइनस टाइम सी इंटू थीटा। व्हाट इज टी, C is nothing but torsional constant of this wire, ये जो वायर से हैंग किया गया इस पार्टिकल को, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बोल सकते हैं इसको, टॉर्सियनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। ये बेसिकली उस वायर की प्रॉपर्टी है, दैट दिस विल गिवन टू यू, राइट। ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, टॉर्सियनल कांस्टेंट ऑफ द वायर, राइट। सो अगेन हम इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा। सो हमें यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा, राइट। अगेन थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, राइट। तो अगेन लाइक ये हमें क्या मिल गया, इन सिमिलर वे ऑफ एंगुलर सिस्टम। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई। व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट with respect to this axis of rotation, इस axis of rotation के अबाउट हम क्या निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा हमें मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ सी बाई आई। सो व्हाट विल बी टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाई सी। व्हाट इज सी, सी इज द torsional constant of the wire, this is nothing but this tells the property of this wire, इस वायर की प्रॉपर्टी को बताता है, राइट, कितना ट्विस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस चीज को ये डिफाइन करता है, ठीक है। एंड ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे ये चीज आई थिंक शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेईई पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी है, तो कभी कभी रेयरली एक दो बार पूछ लिया है, या कुछ बुक्स अगर आप रेफरेंस बुक्स रीड करोगे
या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स है उसको आप रीड करो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, व्हाट इज टॉर्सिनल पेंडुलम या फिर टॉर्सिनल कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, फिर ऐसा कुछ सिचुएशन दे देगा, आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए सिंपल प्रोसेस उसका टाइम पीरियड निकालने, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके भी टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। सर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका ऊपर वाला है जहाँ से वो अटैच है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, बट इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली लाइक ये जो वर्टिकल वायर है ना, एक मिनट, अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक इसका साइज क्या बोल सकते हैं, सपोज अगर ये डिस्क है, ठीक है, अगर ये डिस्क होगा तो डिस्क का जो एक्सिस होगा वही उसका क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो आई जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखेंगे। ये हिंज पॉइंट नहीं होगा, सॉरी, इस केस में क्या होगा, ये जो होगा लाइक दिस लाइन, लाइक द लाइन आर एक्सिस पासिंग थ्रू दी वायर, इस वायर के थ्रू जो एक्सिस पास करेगा वही क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज लाइक ये अपने इस पोजीशन से लाइक ऐसा समझ सकते हैं, इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो उसका पोजीशन वही है, अपने उस पोजीशन पे रोटेट कर रहा है वो, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका ये लाइक अलोंग द वायर ही हो जाएगा, वायर के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये टॉर्सिनल पेंडुलम? यस सर। ओके फाइन, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट में भी कहीं कहीं आपको लाइक कुछ बुक्स में क्वेश्चंस में मिल सकता है, तो ठीक पता होना चाहिए, राइट। बाकी लाइक प्रोसेस सेम प्रोसेस यही इसको करने का, राइट। ओके, वेट अ सेकंड। Okay, next is called damped oscillation, or we can also say damping oscillation, या फिर इसको बोला जाता है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन भी बोला जाता है। damped और सॉरी और damping ऑक्सीलेशन, ठीक है, ऐसा इसको बोला जाता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन और डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये चीज आपको मिलेगी, जेईई मेंस में भी आई थिंक पिछले 10 सालों में 1 या 2 बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इस पे आते हैं, और इसमें डायरेक्ट आपको रिजल्ट थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी डेरिवेशन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें है क्या, पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अस सपोज ऐसे हमने एक स्प्रिंग लिया एंड इससे इस ब्लॉक को, स्प्रिंग कांस्टेंट किया, ब्लॉक का मास है, राइट। सो टिल नाउ अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए, जो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, उसमें हमने क्या कंसीडर किया था, लाइक अगर जनरल केस में हम निकालें तो इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा था, सिंपल टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो उस ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है, राइट, ये वैल्यू तब आ रही है जब हम क्या कर रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हमने क्या किया था, एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट किया था, राइट। वी आर कंसीडरिंग दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हिंड्रेंस, किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। सो इन दैट केस हमारा टाइम पीरियड क्या आया था, t इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, वो आइडियल कंडीशन है बेसिकली, बस प्रैक्टिकली इन आवर डेली लाइफ ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, विल कंसीडर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव फोर्स, एनी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक अगर इसको हम वाटर में, इस सिस्टम को वाटर में रख दें, राइट, तो क्या होगा, एक वाटर जो है, जो पानी वो एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। एयर में रखे तो एयर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो होता है कि अगर इसको स्लाइटली मैंने क्या किया, अगर इसका क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मेन पोजीशन, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम ये रुक जाएगा। ठीक है, लाइक लेट अस सपोज अगर मैंने उसको x ऐसे इलोंगेट किया तो क्या होगा, ये लाइक इस मेन पोजीशन के बाद पहले रोटेट लाइक इस तरीके से मूव तो करेगा, बट स्लोली स्लोली इसका जो टाइम पीरियड है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं बोलूं, इसका जो एम्पलीट्यूड है
वो ऐसे घटता रहेगा इन दिस वे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ब्लॉक है मास m ये रुक सा जाएगा, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ ऑक्सीलेशंस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग ऑक्सीलेशंस आर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इन विच वी कंसिडर the air resistance or any kind of resistive force or resistance which prevents or which slows down the process of SSM, जो process of SSM को slow down कर देता है, बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उस तरह के जो ऑक्सीलेशंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन और डैम्प ऑक्सीलेशन, राइट। सो ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इसमें होता क्या है, हम एक कंसिडर करते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। जो रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टिव फोर्स का कुछ ये वैल्यू आती है, एफ आर भी मैं लिख सकता हूँ, एफ आर में रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम बी इंटू वी, ये रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू आती है। एंड व्हाट इज बी, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। व्हाट इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट मींस व्हाट, एक किस मीडियम में ये पार्टिकल सिस्टम रखा गया है। सो फॉर डिफरेंट मीडियम वी विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, बेसिकली जिस मीडियम में हमने उस ऑब्जेक्ट को, उस पार्टिकल को, उस सिस्टम को रखा है, ठीक है। सो एक रेजिस्टिव फोर्स रखा है, रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। आप देखो सिंपल, आपको समझ में भी आ रहा है, जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब जब हम नेट फोर्स लिखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस रेजिस्टिव फोर्स, तो हमें नेट फोर्स क्या मिलेगा, नेट फोर्स हमें मिल जाएगा एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सिस्टम का हमने स्मॉल एक्स डिस्प्लेस किया, वो एक फोर्स लग रहा होगा, और एक फोर्स हमें ये मिल रहा होगा माइनस बी, जो कि क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम, तो हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिलेगा, एफ प्लस बी बी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, हमें ये रिलेशन मिलेगा। इसको थोड़ा सा और हम अगर सिंप्लीफाई करें तो एफ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सलेशन प्लस बी इनटू वी प्लस के इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को d2x अपॉन dt2 प्लस b इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल या फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, राइट। ये ये बहुत डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट क्या आता है उस चीज को हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। रिजल्ट ये आता है, लाइक x t is position at any time t is equal to a into e to the power minus bt by 2m into cos of omega dash t plus phi। This is the general formula या फिर general equation for displacement of the particle which is doing डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। डैम्पिंग ऑक्सीलेशन में इस पार्टिकल का किसी भी जनरल टाइम t पे पोजीशन का क्या इक्वेशन है, x t इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। दिस होल टर्म इज कॉल्ड फेज, राइट, एज वी नो। ये टर्म पूरा क्या कहलाता है, फेज कहलाता है, ठीक है। ओमेगा डैश क्या है यहाँ पे, इस चीज को भी देख लो, व्हाट इज ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इस तरीके से लिखकर ओमेगा लिखना गलत होगा, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश। ये हमारा क्या है, ओमेगा डैश का वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको इस रिलेशन में एक चीज दिख रही होगी कि लाइक दिस टर्म इज लाइक, हमारा जनरल इक्वेशन क्या आता था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t
+5 एक नॉर्मल सिस्टम के केस में, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ए है, इज व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिस्टम लाइक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये कांस्टेंट है। बट यहाँ पे देखो, अगर आप ये जो टर्म क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दिस होल टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड विच इज वेरिंग विद टाइम, राइट। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a into e to the power minus bt by 2m which is varying with time। और वो चीज हमें लॉजिकली भी समझ में आ रही, क्योंकि तो टाइम क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, घट रहा होगा, उसका ये रिलेशन है। क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम आता है, ठीक है, राइट। और टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड सिंपली ये जो ओमेगा डैश की वैल्यू को यूज करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा डैश, इस वैल्यू को यूज करके हम क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। और आपको चीजें दिख रही, टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, बिकॉज k इज कांस्टेंट, m कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, बाकी सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। तो ये थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो xt है। xt means what, position of the particle at any time t, बेसिकली xt का मतलब ये है, राइट। जो पार्टिकल ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, जो ऊपर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है, सो इन केस ऑफ डैम्पिंग ऑक्सीलेशन xt इज व्हाट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। कर xt लिख लो, yt लिख लो, सेम है। कर यहाँ पे वर्टिकल हम डिस्प्लेसमेंट है, तो yt भी हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिकली वो पोजीशन बता रहा है एट एनी टाइम t, और सर वो e की पावर माइनस bt by 2 है। right, e to the power minus b, what is b, b is the damping constant, t is the time by 2 into m, m is the mass of the particle और ऑब्जेक्ट जो ऑक्सीलेशन कर रहा है। बेसिकली देखो इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। ये चीज आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। एंड लाइक फॉर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ, जेईई मेंस में आई थिंक लास्ट 10 ईयर में एक या दो बार पूछा गया है जेईई मेंस में, ठीक है। और डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू दिस व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, राइट। उसमें टाइम दे दिया था और लाइक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी थी, आपको बेसिकली एम्पलीट्यूड बताना था, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ था, या ओमेगा डैश पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गया ये इक्वेशन रिलेशन, यस। ओके। सो बेसिकली लाइक अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफ क्या, फिर सिंपल चीज आपको दिख रही है, टाइम एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, Yes, sir. okay, that's fine। If this is the time and this is the position x, that are you can also say the amplitude, so इस तरीके का कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा like this way। सॉरी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेट अस सपोज ये a नॉट है, और ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू a नॉट है। सो इसके पर लिख लो, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा, लाइक amplitude will decrease slightly like this way and this way, ऐसे ऐसे डिक्रीज होते होते फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा, राइट, विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड टाइम कर्व ऐसा भी आप बोल सकते हो। सॉरी, दिस इज a naught is what, maximum amplitude basically। a naught is नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी, कोई कुछ पूछना चाहता है इस पार्ट में तो बताओ। सर इसका एक क्वेश्चन करा सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली एक ना मुझे देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म में करा लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में लाइक ये फॉर्मूले हैं, लाइक जैसे एम्पलीट्यूड के वेरिएशंस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी टाइम टी पे आपको पूछ लेगा, किसी टाइम टी पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, राइट, या फिर ओमेगा डैश की वैल्यू पूछ सकता है, ये सब चीजें पूछते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे हम इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2-4 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे।
ठीक है। तो एक चीज और छोटी सी कॉन्सेप्ट बचा है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम का लास्ट टॉपिक है। एंड इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है वेव मोशन, string wave, sound wave, right? What is string and wave? Is nothing but the combination of infinite SHM, right? अगर मैं सिंपल बोलूँ तो what is wave? Wave is nothing but the combination of infinite SHM। जब कई सारे SHM एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? वेव बनता है, ठीक है। सो हमें पहले ये सीखना है कि like when two SHM will combine, or we can also I can also say that like when a particle get two SHM, then what will happen? अगर एक पार्टिकल को दो SHM मिलता है तो क्या होगा, right? दो सिस्टम मिलने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है, राइट, कोई पार्टिकल पोजीशन कोई भी हम लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एक वेव ऐसे गई, राइट, एक वेव ऐसे गई, तो वेव इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, राइट। तो इसको एक एसएचएम मिलेगा, बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि इससे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा एज पर इक्वेशन ऑफ दिस वेव, राइट। सो लेट अस सपोज कि फर्स्ट जो एसएचएम इसको मिला है ड्यू टू दिस फर्स्ट वेव से जो फर्स्ट एसएचएम का इक्वेशन मिला उसको मैंने माने x इक्वल टू समथिंग a1 sin ओमेगा t, राइट, फर्स्ट से सेकेंड वेव से लेट अस सपोज सेकेंड वेव से इसको एक इस पार्टिकल को एक और एसएचएम मिला जिसका इक्वेशन मिला x2 इक्वल टू a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5, राइट। ये सेकेंड वेव के थ्रू जो इस पार्टिकल को एसएचएम मिला उसका ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फॉर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, राइट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में क्या बोला जाता है, लाइक नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, लाइक वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, राइट। बेसिकली अगर एक वेव आती है तो उस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट डिस्प्लेसमेंट प्लस अगर सेकेंड वेव आती इन दैट केस उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों का क्या वेक्टर समेशन बेसिकली, राइट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो इन दिस केस अगर मैं लिखूं नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट, नेट डिस्प्लेसमेंट this will अगर मैं लिखूं नेट डिस्प्लेसमेंट इज x, so I can write x is equal to x1 plus x2, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक्चुअली इस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन इज नथिंग बट like when two waves are a particle, when a particle gets two SHM, right, when a particle gets two SHM, the net displacement of the particle will be equal to the vector summation of the displacement of the particle when that particle will get individual SHM। बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो आप। करिए कुछ टर्म ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट वेव चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है इसकी कि अगर फर्स्ट वेव आता तो इस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता, प्लस सेकेंड वेव आता तो उस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन दैट पार्टिकल विल फेस इंडिविजुअल वेव, जब इंडिविजुअल वेव को जब फेस करता है उस टाइम जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों का क्या होता है वेक्टर समेशन। दैट प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी उसको बोला जाता है, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ेंगे वेव चैप्टर में। यहाँ पे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ये है कि अगर एक पार्टिकल को दो एसएचएम मिलते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, जहाँ पे बेसिकली वो रिलेशन है, ठीक है। सो if I say that net displacement is x, so what I can write, x is equal to x1 plus x2. What is x1? x1 is a sin omega t, and what is x2? x2 is nothing but a2 sin of omega t plus 5, right? आपने शायद वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, लाइक अगर कोई टर्म ऐसे लिखा है a sin थीटा plus b cos theta, right, in this form. So how can we simplify this term? कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर कोई टर्म ऐसे लिखा है
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें हम क्या करें, कॉमन टर्म से वन बाई नहीं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। राइट, ये पता है क्या आप लोगों को, लाइक दिस प्रोसेस, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन, डिड यू नो? नो। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली ऐसे होता है, अगर आपको आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज़ें यूज में आती हैं। अगर हमें कोई ऐसा टर्म दिया हुआ है, राइट, लेट अस सपोज समथिंग, कुछ भी बाई मान लेते हैं, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वन एंगल, एक एंगल में अगर इसको कन्वर्ट करना हो, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैंने क्या किया, लाइक जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट टर्म है उसका मैंने स्क्वायर लेके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया। बेसिकली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे आ गया, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है, लाइक बेसिकली अगर इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैंने क्या किया, सिंपली ऐसे एक ट्रायंगल, लाइक जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, समझने के लिए बस ऐसे ही, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं, राइट। सो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया पहले से ही, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, राइट, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म हमारा आ जाएगा, राइट। एंड हमें पता है कि अगर कॉस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सो बेसिकली ये यस। टर्म हमारा क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये टर्म हमारा आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, राइट। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप टेन अल्फा लिखो तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बी बाई ए, राइट, टेन अल्फा क्या आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, अल्फा विल बी व्हाट, अल्फा विल बी टेन इनवर्स ऑफ बी बाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इन सिमिलर वे हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कर आई थिंक एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट ठीक है, हम इसको एक बार समझ लें, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको फर्दर स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव एंड फर्दर जब 12th का चैप्टर आएगा, वेव ऑप्टिक्स, ये कॉमन चीजें कॉम्बिनेशन आप ऐसे सब, और इस तरीके से कई बार हम इसको यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिमिलर वे में हमें करना है, राइट। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, एक्स इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये टर्म हमारे पास है, ठीक है। अब इसको, ये वाला जो टर्म, इसको क्या करता हूँ मैं, ब्रेक कर लेता हूँ, राइट। फाइव क्या, फेज कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट, राइट। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ a प्लस बी, क्या मिलेगा मुझे, साइन a कॉस बी, मतलब ये बेसिकली मिल जाएगा कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 5 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये टर्म मिल गया, राइट। अब साइन ओमेगा टी का जो टर्म है, ये टर्म, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा a1 प्लस a2 कॉस 5, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, राइट, विथ सम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, ये दो
कोफिशिएंट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये जो मैंने ऊपर जस्ट किया है इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो सिमिलर पैटर्न जो मैंने ऊपर जस्ट आपको ये एक्सप्लेन किया, ये वाला टर्म, हाउ टू कन्वर्ट लाइक दिस टर्म लाइक y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, सिमिलर पैटर्न में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या होगा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या मिल जाएगा, हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई एंड व्हाट इज b a2 प्लस सॉरी a2 sin फाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको देखो क्या मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, a2 स्क्वायर आप कॉमन लो, a2 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos फाई, ये आपको फाइनल मिलेगा। फाइनल किसकी वैल्यू मिली आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली, ठीक है। तो मैं सिमिलर पैटर्न में कर रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न में क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको मैं डायरेक्टली लिखूं तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं ए बी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या क्या है, a1 प्लस a2 cos फाई है, बी की वैल्यू क्या है, a2 sin फाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा फाइनली ये मुझे इस तरीके से मिल जाए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, राइट। अब थीटा और अल्फा की वैल्यू लिखते हैं और ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो x इज इक्वल टू ए नेट was net amplitude of a particle when particle gets to a system, right। a net into sin of सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, राइट। थीटा की जगह में क्या लेता, ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए, राइट। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए, राइट। व्हाट इज b, b इक्वल टू a2, wait a second, a2 sin phi, right, b is a2 sin phi and what is a is nothing but a1 plus a2 cos phi। तो ये हमारा आ गए अल्फा की वैल्यू, राइट। सो जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आया किस फॉर्म में आया, x इक्वल टू ए नेट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया पार्टिकल का एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे अगर हमें निकालना हो तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज गेटिंग टू एसएचएम, एक ऐसा पार्टिकल जिसको 2 एसएचएम मिल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड 2 टाइम्स ड्यू टू 2 डिफरेंट वेव्स, राइट। 2 डिफरेंट वेव की वजह से जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या होगा, वो हमें रिलेशन मिलाएगा। समझ में आया ये, या कुछ पूछना है इसमें? यस, समझ। एक बार आप नोट डाउन करके अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें, राइट। चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एक बार आप इसको देखो 2 मिनट में, इसको समझो, एंड अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है जस्ट आस्क मी।
ये क्लियर है एक्सप्लेनेशन सभी को? और एनी क्वेश्चन? ये लाइक दोनों पार्ट नोट डाउन कर लेना आप, लाइक ये जो मैंने किया ऊपर वाला जो पार्ट है इसको भी नोट डाउन करना है कि हाउ टू कन्वर्ट, लाइक ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो ये चीजें आपको फर्दर यूज में आएंगी, लाइक हाउ टू कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ द कंप्लीट एंगल, राइट? ये जो फॉर्म है लाइक द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, दिस इज आल्सो यूजफुल. Sanskriti, did you get it? Anything you want to ask to me? Okay, fine. It's good. Okay, अब इसमें अगर आप केयरफुली देखो तो मिला क्या क्या आपको, उसको एक बार हम फाइनली राइट डाउन कर लेते हैं. हमें जो फाइनल क्या मिला, x इक्वल टू ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ये हमें फाइनल मिला व्हेन वी कंबाइन टू SHM, राइट? आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM, राइट? वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi, राइट? अल्फा की वैल्यू ये है. एंड व्हाट इज a net? a net is nothing but square root of a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos phi. ये हमें a net मिल गया. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो व्हाट इज ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंड जिन दो SHM को हमने ऐड किया इनिशियली, अब यहाँ पे आप देखो ये दो SHM जिनको हमने ऐड किया, x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. इन दोनों SHM का जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तभी हम ऐड कर पाए, अदरवाइज हम इसको ऐड नहीं कर पाते. पहली चीज. सेकेंड थिंग, अब केयरफुली आप देखो तो इसका लेकिन इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है. SHM का x1 और x2 का दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम, बिकॉज़ ओमेगा इज सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा. एंड जो रिजल्टेंट हमें मिला x इक्वल टू a नेट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इसका भी ओमेगा सेम. ओमेगा सेम मींस व्हाट, कि इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसका भी टाइम पीरियड क्या है, सेम है. ठीक है. एंड अगेन ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM आल्सो, राइट? दिस मींस व्हाट, व्हेन वी ऐड टू SHM, right? Or we can also say that when a particle will get two SHM, the resultant will also be a SHM. किसी पार्टिकल को अगर दो SHM मिलता है, राइट, या फिर हम दो SHM को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अगेन विल गेट ए इक्वेशन ऑफ SHM, राइट? तो किसी पार्टिकल को अगर दो SHM मिलता है तो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, एक SHM ही होगा, राइट? एंड द टाइम पीरियड विल बी सेम बिकॉज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. एंड दो SHM को हम तभी ऐड कर सकते हैं when their angular frequency should be same, angular frequency same होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं. रिजल्टेंट हमें SHM ही मिलेगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा. चेंज क्या होगा, चेंज क्या क्या होगा, चेंज होगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, हमें एक न्यू एम्पलीट्यूड मिलेगा. एंड फेज कांस्टेंट, ये क्या है, अल्फा, अल्फा क्या है, फेज कांस्टेंट, हमें एक नया फेज कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है, हमें एक नया फेज कांस्टेंट मिलेगा, एक नया हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा. सो अगर ये दो SHM के लिए एप्लीकेबल है, सो जस्ट थिंक अगर एक पार्टिकल को 4 SHM मिलते हैं, राइट? इफ ए पार्टिकल इज गेटिंग 4 SHM, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, जस्ट थिंक, सोचो एक बार. इफ ए पार्टिकल इज गेटिंग 4 SHM, I say if we are adding 4 SHM, अगर 4 SHM की इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, Sir, could you repeat? if we add 4 SHM, then what will be the resultant equation? अभी हमने क्या किया, हमने दो SHM को ऐड किया, राइट?
but if we add 4 SHM like this, let us suppose ऐसे अगर मैं x is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4, so what will be this resultant x, resultant जो x है वो क्या होगा, किस फॉर्म में आएगा वो? अगेन लाइक देखो, वी कांट डायरेक्टली ऐड दिस 4, हम इस 4 को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, विल ऐड 2 इन पेयर ऑफ 2, हम 2 के पेयर में ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट विल ऐड दिस x1 x2, when we'll add x1 x2, what we'll get an equation of new system with new amplitude and new phase constant, right? Then we'll add this x3 and x4, then what we'll get a new equation of a system with new amplitude and new phase constant. So हमें क्या मिलेगा, दो नया सिस्टम मिलेगा, लेट अस सपोज x डैश एंड x डबल डैश, राइट? एंड अगेन जब हम इसको ऐड करेंगे, व्हाट विल गेट ए इक्वेशन ऑफ न्यू सिस्टम विद सम न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू फेज कांस्टेंट. समझ में आया या नहीं? ये राइट, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट? एंड लाइक व्हेन विल डू द क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक अभी वेरिएबल्स के टर्म्स में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में भी हो सकता है, राइट? बहुत, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, बट जब ये एक नंबर्स के फॉर्म में होगा एंड जब क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान मत उसके बारे में. जब नंबर्स आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? सो एसएसएम का थ्योरी पार्ट डन हो गया है, राइट? आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कोई भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी होता है जस्ट आस्क टू मी, एंड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस टॉपिक पे, लाइक इसका डैम्पिंग ऑक्सीलेशन का हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, और इसका कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद वेव, राइट? स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, ठीक है? एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी, एनीवन? Okay, Sanskriti, do you want to ask to me anything? No, sir. Okay, okay. Thank you so much. So we'll end this session here. So we'll meet in the next one. So until, practice questions related to this chapter, and if you feel any confusion, doubt, then just ask to me next class. Okay? yes, Okay. Thank you so much, everyone. Okay, sir. Thank you. thank you, sir. You are now muted. Bye. Yeah.